Yeah, I welcome you for the program. I would like to take this opportunity to welcome Ms. Chitra Iyer. Ms. Chitra Iyer is the CEO and financial coach at MFA Capital in Capital Private Limited. Within 20 years of experience in the financial service sector, a cost accountant and certified financial planner. She leads this verticals, driving strategical growth. As a special need parent to 24-year-old Shravan, she advocates for autism rights and serves as a uh, treasurer and trustee for the Forum for Autism. Ms. Iyer educate others through campaign and her podcast, Special Needs Children Podcast with Chitra Iyer. She has published 36 episodes sharing insights of to support families and special need children. An avid runner, she has participated in over 20 marathons, balancing her professional and personal life. Welcome you, ma'am. Welcome for our program. Thank you so much. Sorry that you have to do this from the hospital. It's okay, ma'am. No issues. And please introduce Ms. Shreya Jain also. Yeah. I would like to welcome our resource person, Ms. Shreya Jain, the CEO and founder of Reservoir. Pursue a dual degree in chemical engineering and MBA from NMIMS Mumbai. Driven by our passion and inspired by her brother with autism, Shreya ma'am left her corporate career to establish Reservoir. Her journey into the field of special need began with a deep realization of the lack of resources available for this community in India. To broaden her perspective and bring innovative ideas back home, she spent 3 months in New York working with an NGO, where she gained insights into the opportunities and solutions of individuals with special needs. Thank you. I welcome you, ma'am. Thank you for coming for our program. Thank you so much. And thank you to all the organizers for organizing this very important session. And thanks to Chitra as well. I think Ms. Chitra is in the lift. So, Ms. Shreya, you want to say something till then, or you want to share something till then? She's Sure. asked for 5 minutes more. So, would you like to start the session with a few words or something? Yeah, sure, absolutely. So I would actually just like to set context for everybody here. I think it's one of the beautiful things about this session is that both Chitra and I come from deeply personal experiences. So both of us have gone through the trouble of finding solutions for ourselves, and in that journey created solutions for family like ours. So you will find that all of our examples are very relatable, and we've tried to keep this in a way where we don't make the information intimidating. So we share a lot of personal examples, we share a lot of our own experiences through our journey of helping other families, in the hope that it allows you to take action and not procrastinate about these things. I think like thinking about finances, thinking about the future, especially legal and financial, can be very intimidating because it's a language we don't understand. So hopefully what we want to do today is simplify these concepts and make it available to you in very easy language. So then you understand that it's not something to be scared about. It's something that is very freeing. It's very liberating. So if you actually do it today, the amount of freedom you can have, that's unmatched.
I also wanted to check what is the language that everyone is comfortable in. So should we do English? Should we do a mix of English and Hindi? What is the preferred mode of communication? Yeah, I was just going to say, let's do English. Yeah, a bit of Sure. Hindi and English, because quite a few parents, prefer Hindi. So they are more comfortable in Hindi. So I think let's do a combination of both. Yeah, would that be okay? Sure. Yeah, that's totally fine. तो Great. मैं तब तक थोड़ा सा अपने फैमिली के बारे में बता सकती हूँ. So I have a brother who's 25 years old, and he's autistic. And he lives in Chandigarh in a group home now. So when we started planning for him was during a really difficult circumstance because my father was unwell, and we wanted to learn how to, take care of my brother in case something happened to him. तो तब हमें बहुत लोगों ने एडवाइस दिया कि आप विल बना लीजिए, ट्रस्ट बना लीजिए, और हमने उस टाइम पर जितना हमें समझ आया, जो हमें हेल्प मिली उसके हिसाब से हमने डॉक्यूमेंट्स भी बनाए. Fortunately for us, my dad recovered and we had the chance to, look at the systems we created once again. ठंडे दिमाग से हमने, हमारे पास कुछ प्रेशर के बिना सोचने का उसे दोबारा मौका मिला. तो वी रियलाइज्ड कि उसमें बहुत सारे इश्यूज थे, क्योंकि जिन लॉयर्स के साथ हमने एडवाइस लिया, जिन फाइनेंशियल एडवाइजर्स ने हमें एडवाइस किया, वो हमारी फैमिली के यूनिक स्ट्रक्चर को नहीं समझ पा रहे थे. So they were not understanding the unique requirements that my brother had, or the unique requirements that were required for long-term planning of a family like ours. तो इस प्रोसेस में मुझे रियलाइज हुआ कि अगर मेरे जैसा पर्सन जिसके पास टाइम है, मैं काफी हद तक, जब मैं लीगल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करती हूँ, फिर भी मुझे ये सोल्यूशंस नहीं मिल रहे. तो फॉर मदर्स हु आर वेरी बिजी, लुकिंग आफ्टर देयर चिल्ड्रन, मैनेजिंग देयर होम्स, ऑल्सो देयर वर्क, दे हैव अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड लाइफ. तो उनके पास कहाँ से समय आएगा, टू लाइक build all these things for them. So that was sort of the primary motivation of starting Reservoir. और उसी जर्नी में मैं चित्रा ये से मिली, which and I realized that her approach is very similar. कि हम जो भी ये processes हैं, अगर हम उन्हें इतना simplify कर दे parents के लिए कि they understand that it is tailored to their family, which is very very important. Because मुझसे बहुत लोग आकर बोलते हैं कि क्या आप हमें टेम्पलेट दे देंगे ट्रस्ट विल का, लेटर ऑफ इंटेंट का. और मैं बोलती हूँ कि अगर आपको मतलब आपका बच्चा, if your child is not like any other, if your family is not like any other family, how like a template just doesn't work. So the person you're talking to, जिससे भी आप बात कर रहे हैं, चाहे वो फाइनेंशियल एडवाइजर है, चाहे वो लीगल पर्सन है, आप जिस तरह से आप अपने डॉक्टर या थेरेपिस्ट से बात करते हैं, यू वांट देम टू अंडरस्टैंड द इंडिविजुअल नीड्स ऑफ योर फैमिली एंड चाइल्ड. आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर और लीगल एक्सपर्ट से भी सेम एक्सपेक्टेशन रखिए. अगर आपकी फैमिली का कोई स्ट्रक्चर नहीं समझेगा तो आपको सोल्यूशन ऑफर नहीं कर पाएगा. नाउ चित्रा मैम इज आल्सो हियर. So Thank you so much, Shreya. I'm so sorry. no problem at all. Thanks, I'm very, Shobha. I do think, Chitra, the story that you share, which is your own, and the way you walk through the case studies, I think are very, very helpful. So please, मेरा suggestion बस ये होगा, आप लोग please बहुत सारे questions पूछिए. That is the only way we can help you today. Absolutely. Let's make the Yeah. most of this hour. So, yeah. Shobha, I guess we've also shared some questions with you, no? Sorry, you're on mute. If somebody can post that link, the Google link in the chat box, I would request parents to just fill it in and give, because Awesome. I don't have the Because, document with that me right gives now. both Shreya and me a good idea of, Definitely. at what parents are thinking. Raksha, if you think you can If do somebody that, can just it would post be it. very helpful. Yeah. And secondly, I think Can you please turn share on it. my sharing also? Yes, So yes, that I can share it's already done. Already done. No, So it, please, I think not it able needs to? to be redone because I Raman- logged in again. Ramani, can you allow multiple people to share, please? Ramani? Poor thing. I didn't know she was in the hospital. I wouldn't Yes, forgive yes, her. ma'am. Yes, Yeah, ma'am. Yes, can you ma'am. allow I'm here. multiple people, to share Huh. then? Yeah. Yeah. Thanks.
Yeah, the biggest thing is everyone English or Hindi. What is preferred language or mix? English, English plus Hindi, because many parents speak only Hindi here. So more of Okay. Hindi, less of English would be हाँ ideal. प्लीज आप सब लोग चैट पे मैसेजेस करते रहिए तो फिर हमको समझ में आएगा कि आपको किस हद तक समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है। दोनों हम श्रेया और मैं आराम से हिंदी बोल सकते हैं। अगर आपको हिंदी नहीं समझ में आ रहा है तो किसी ने तो इंग्लिश बोला है, आप लोग प्लीज बताइए। तो हाँ मिक्स ठीक है, तो हम लोग वी विल टॉक इन वी विल टॉक बोथ एंड एट द एंड ऑफ द सेशन इंग्लिश। या एट द एंड ऑफ द सेशन अगर आपको हमने इतना भी समझा दिया कि ये कितना इम्पोर्टेंट है और हमेशा हमको लगता है कि दोनों अगर लीगल का जो प्लानिंग है और फाइनेंसेस का जो प्लानिंग है, ये हमको सबको पता है कि करना तो है, लेकिन किसी को ना टाइम मिलता नहीं है। और प्रायोरिटी के हिसाब से मैंने हम कितने थाउजेंड्स ऑफ फैमिलीज के साथ बोल चुके हैं कि ये आपको करना है। हम सब लोग ये सोचते हैं कि हम जब सोने आज शाम को या रात को हम लोग सोने जा रहे हैं, कल सुबह हम उठने वाले हैं और हम हमारे बच्चों का देखभाल करेंगे और हमको कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन ऐसा नहीं है, राइट? कभी भी कुछ भी हो सकता है और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारे बच्चों के लिए हमको जिस तरह का पैसे के बारे में जो प्लानिंग करना है दैट वी हैव टू डू, as well as in India all the legal requirements whatever need to be done has to be done, and that will be covered very beautifully by Shreya. So without wasting more time, I'll try to share. Yeah. I hope this is visible. It's visible. Yeah, Shubha? Yes, yes, Yeah. absolutely, it's visible. Thank you. So, welcome to the webinar, everyone. Managing Family Finances for Children with Special Needs. I'm taking care of the finances part of it, and Shreya will take care of the legal aspect of it. Though I will very briefly touch upon what all needs to be done, ekdam sankshet mein. Then Shreya will really break it down in detail. So, there is an important document that I will share with Shobha, जो आपको WhatsApp किया जाएगा. 6 most important documents that you will ever need. This is my son Shravan. He's 26 today. When we got the diagnosis, and he was born 1998, diagnosis आया, epilepsy hit him immediately. उसके बाद autism का diagnosis आ गया जल्द ही 3 साल के अंदर, and cerebral palsy, global delay, all of this was happening. It was a shock, right? That we never anticipated. We didn't even know the word autism, and suddenly we were thrown into this whole pool of ये क्या हो गया और क्या सीखना है हमें. The quick thing that we did, both of us, me and my husband, just pulled ourselves up and said that हाँ तो क्या हुआ, autism है, so let us understand more about it and let us get going ahead with what needs to be done for our son as soon as possible. फिर भी हमको बहुत सारे डॉक्टर्स जैसे ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट ने बोला कि आप तो बहुत लेट आ गए, at the age of 6 months you should have come with your son, then I would have given him glasses and he would have been able to reach out to a toy. We did feel इस तरह के भी, you know, we got people telling us that uh, what interventions need to be done, how you need to keep updated on this, and a big thanks I always have to tell is the parent support group, Forum for Autism, where the senior parents, all of them held our hand and said that, you know, do this, don't do that, ये होगा, ये replacement behavior आ जाएगा, ये चला जाएगा, and they gave us a lot of solutions for everything that we were facing with Shravan.
as Shravan grew up, gradually I could start thinking about going back to my career. मैंने कभी सोचा नहीं था that I'll go back to a job at all. But by that time, while Shravan started standing and walking around the age of 6, 7, I bumped into our current founder, Mr. Amar Pandit of MFA, and he said that, why don't you get back to work? And my husband was also telling, autism is going to be there for the rest of our life, but you need to get back. तुमने जो experience लिया है and what your capability, intellect is, you need to be able to, live up to that and do whatever there is for yourself as well as to give back. And I was really lucky because a lot of women I see drop off from their careers. जिन जिन ladies ने काम किया था, लिया था before their children were born, they find it very difficult to get back to work. And it becomes such a big gap, no, that by that time it becomes like dated and people are not able to realize that what do we do. So I got lucky. I started working, and today Shravan goes to a vocational setup where he is busier than us. He is learning uh, more of ADL skills only, daily living skills, and a simple vocation of finger painting. That's what we have started him on. But he is happy. He gets to go to a place every day. He gets to meet his friends. He comes back. He does a lot of cycling. When the original cerebral palsy diagnosis had come, I have seen all the mothers carrying their older children and taking them around in wheelchairs. I used to always wonder whether I'll also do that. I'll be doing that. But a lot of, I think God was kind, a lot of reading, a lot of demanding stuff from our therapists, who were really so good. I always believe that India mein jo therapists hai, you can't find them across the world. I feel people like, Anjali Joshi, Sabri Jiwala, so many people we met. And of course, my mentor is Beena Modak of Forum for Autism, who guided completely in terms of what all I need to be focusing on for Shravan. So this journey has not been easy, but it has been very, very it's been life changing for us, and we have taken it in that spirit that all our people who are around us are aware of Shravan. They interact with Shravan. They don't ignore Shravan. We don't have to hide Shravan. We take him on all our trips. We take him to all the friends' homes where we are invited. They first invite him, then they invite us. We have found ways and means of making it easier for him, using his music, using his videos, how he can, spend his time and feel comfortable in any place, around anybody, in any new space. He's completely non-verbal today also. We're using Avaz, and we started Avaz very late, but I feel that in the next 10 years, Shravan should be able to communicate much better through Avaz. And today, thanks to all this, a document like this got readied as part of my team where we give key directions of, all the documents that need to be made in India, the UDID card, the legal guardianship certificate, letter of intent, your wills, trusts, and of course, managing your finances. I will request Shobha to share this with you. It's both there. It's there in English as well as in Hindi. So the continuing from my journey, what we have realized, both Shreya and me, is that parents don't have enough help in planning for their future. Barely 65% of people think that there is nobody there. There's no way. I don't know how to go about this. They have not spoken to any financial professional trained in special needs planning. About 93%. Same applies to making wills and trust. People think that wills and trust anybody can make, but to make it for a special needs family is genuinely very different. Parents do not have an up-to-date, financial roadmap
टू अंडरस्टैंड दैट किसका कहाँ से पैसा आएगा, कितना पैसा लगेगा, किस चीज के लिए लगेगा, फ्यूचर के लिए 10 20 30 साल के लिए मैं किस तरह से सोचूं। 94% पीपल ने तो सोचा ही नहीं है, उनको पता नहीं है, उनके पास ऐसा रोड मैप नहीं है। और मोस्टली केयर गिवर्स आर नॉट इवन अवेयर दैट देर आर पीपल लाइक मी एंड श्रेया अवेलेबल. Me and my team members, my colleagues are also there on this session. And big thanks to Shobha for requesting that, we can address your team, Shobha. And we hope that people will reach out to us. आप सबको मुझे यही बताना है कि anybody, all of you, whatever we are presenting today, we will request that you should take a one-on-one session for yourself with your spouse or your whoever is managing your money at home, and understand the whole finance aspect of it as well as the legal aspect of it. Now, the biggest worry for all of us, especially people here, please, you all can put on chat whether whatever I'm saying makes sense to you and is it right or not. Is who do I trust? कितने लोग सोच रहे हैं यहाँ पर कि मैं किसको ट्रस्ट करूं? आप प्लीज टाइप करके बताएंगे यस या नो? कोई बता सकता है? Yeah, that how many of y'all think that you know my family or my second child is the person who I trust? वो सब देख लेंगे. कितने लोगों को लगता है कि अल्टीमेटली कोई इंस्टीट्यूशन है जिसके पास मुझे जिस पर मुझे भरोसा करना पड़ेगा? या फिर कितने लोगों ने दोस्तों के साथ बात भी की है अपने बच्चों के बारे में? इट्स वेरी वियर्ड. खुद के फैमिली में भी लोग बात नहीं करते हैं कि मुझे ये मदद चाहिए मेरे बच्चे के बारे में. अगर आपको फाइनेंसिस के बारे में किसी के साथ डिस्कस करना है, आपको हमारे बच्चों के जो परवरिश परवरिश है, आप जिस तरह से मेहनत डाल रहे हैं और उनका जो प्रोग्रेस हो रहा है, इसके बारे में भी लोग ज्यादातर डिस्कशन नहीं करते हैं विद इन देयर ओन फैमिली. ये फैमिली में क्या होता है कि हम हमारे हस्बैंड, आवर पेरेंट्स, आवर इन लॉज, एंड इफ यू हैव अ सेकंड चाइल्ड दैट इज द पर्सन, इतने में सीमित रहता है. लेकिन इसमें मैंने देखा है कि इवन टू टॉक टू वन ओन देयर ओन पेरेंट, दे गो वाया समवन एल्स. मेरे साथ कितने लोगों ने बोला है कि आप मेरे भाई के साथ बात करोगे क्या? उसके बेटे को ना स्पेशल नीड्स है, लेकिन मैं उससे कैसे बात करूं? बोला क्यों, आप तो भाई हो, आप बात नहीं कर सकते हो क्या? तो उनसे नहीं नहीं, उसको कुछ लगेगा, कुछ बुरा लगा तो इट्स इफ आई कैन टॉक इट इज ओके, बट यू बीइंग द ओन ब्रदर कैन नॉट टॉक. तो देन इज सेइंग नहीं, मेरे मम्मी ने बोला मुझे ऐसा करने को, कि मम्मी भी बात नहीं कर पा रही है. तो दीज आर ऑल बेसिक इश्यूज जो आपको टैकल करना है ट्रस्ट के बारे में, कि कौन है जिस पर मैं विश्वास कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे जरूरत पड़ना है. कल मैं गिर गई और मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा, मुझे हॉस्पिटल में रहना पड़ा, तो कौन मेरे बच्चे को संभालेगा इन माय एब्सेंस? इसके लिए मैंने किसके बारे में सोचा है? इसी तरह वो जब कॉम्प्लेक्स होते गया कि टुमारो आई एम नॉट अलाइव, तो मेरा जो पैसा है, मेरे बच्चे के लिए मैंने जो पैसा रखा है, वो मैं किस पर विश्वास करूं? किसको दूं कि वो मेरे बच्चों के लिए वो पैसा ठीक से रखेगा? तो एज वी ऑल नो, जैसे हम एज वी एज, जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमको ये भी पता है कि फैमिली से ज्यादा शायद हमारे फ्रेंड्स भी आ जाते हैं. करेक्ट? हमारे फ्रेंड्स हमारे लाइफ में थे, हमारे स्कूल फ्रेंड्स हैं, कॉलेज के फ्रेंड्स हैं, जो शायद आप उनके साथ ज्यादा बात कर पाते हो. हमारे दूसरे स्पेशल नीड्स पेरेंट्स हैं, उनके साथ आप बात कर सकते हो. हमारे जो थेरेपिस्ट हैं, वो भी हमारे इतने करीब आ जाते हैं क्योंकि हमारे बच्चे हैं, तो वो भी हमारे लिए फ्रेंड्स के समान ही है. बिलीव मी, मेरे इस जर्नी में मैंने बहुत फ्रेंड्स बिकॉज ऑफ मेरे बेटे की वजह से मैंने बनाई हैं, अक्रॉस जो प्रोफेशनल्स हैं ये फील्ड में और अक्रॉस जो पेरेंट्स हैं ये फील्ड में. तो अभी जब आप ट्रस्ट के बारे में सोच रहे हैं कि मैं किस पर विश्वास करूं, तभी ये भी सोचना है कि मेरे बच्चे का एज के, मेरे एज और बच्चे के एज के बीच में जो लोग हैं, उन पर मुझे विश्वास करना है.
तो ये कौन हो सकते हैं? आपके जो भाई बहन हैं उनके बच्चे, या आपके जो हस्बैंड के भाई बहन हैं उनके बच्चे। करेक्ट? बेसिकली आपके कजिन्स ऑफ योर चिल्ड्रन, या फिर आपके कजिन्स के भी बच्चे, इनके बारे में आप सोच सकते हो। तो ये तो आपको जारी रखना चाहिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है हस्बैंड वाइफ के बीच में, क्योंकि ये अकेले में ना डिस्कशन डिसीजन नहीं ले सकते हैं बाद में, अगर एक स्पाउस चल बसे तो। जो भी है, आपको अभी से ये डिस्कशन शुरू करना है कि मैं, अगर हमको कुछ हो गया तो हम किस पर विश्वास करेंगे, ये आपको सोचना ही है। जब आप ये सोच रहे हैं तभी पैसा जो है वो जो बनाना है वो भी इम्पोर्टेंट है। आप हाथ पे हाथ धरे बैठ तो नहीं सकते हैं कि नहीं मेरे पास बहुत कुछ है, मेरा इंटरवेंशन और मेरे बच्चे के साथ ही मैं यहाँ वहां भाग रही हूँ, तो मैं, और दूसरा बच्चा भी है, उसके एजुकेशन के लिए भी मैं टाइम स्पेंड कर रही हूँ, तो मैं पैसे के बारे में भी मैं कहाँ से सोचूं? मुझसे नहीं होगा ये आप नहीं कर सकते हो। और ये क्यों, ये मैं थोड़ा आपको बताऊंगी। आज मैं किस किस चीज के बारे में सोच रही हूँ, राइट? तो एक मैं दो तीन केसेस आपको बताती हूँ कि कोविड के दौरान पहले एक पेरेंट चल बसे, और 3 महीने के बाद दूसरा पेरेंट भी चल बसा। मुझे मेरे तभी मेरा बेटा एक और स्कूल को जा रहा था, वहां से कॉल आया कि चित्रा, आपको पता है क्या कि ऐसे अगर दोनों पेरेंट्स अचानक चल बसे तो उनके फाइनेंसेस के बारे में क्या करना चाहिए? हमको कुछ पता नहीं है। उनके नेबर का फोन आया है, और ये लड़की है, उसकी बहन जो है वो सिंगापुर में है, और वो लॉकडाउन में आ नहीं सकती है, तो हम क्या करें? और इस तरह के केसेस में जहाँ हस्बैंड वाइफ ने लिख के नहीं रखा है कि कौन से बैंक अकाउंट में, कौन से बैंक अकाउंट है, कहाँ पर पैसा रखा है, कहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट है क्या, म्यूचुअल फंड है क्या, स्टॉक्स है क्या, घर के जो पेपर्स हैं, उनका खुद का पैन आधार, बच्चे का पैन आधार, ये सब अगर नहीं है तो कोई भी मदद नहीं कर सकता है। और इमेजिन अगर ये सब आपने ठीक से नहीं किया तो फिर हमारे बाद जो है उनको ये सब डील करने में बहुत मुश्किल होगा, एंड देयर बी टू मेनी डिफिकल्टीज इन जस्ट सॉर्टिंग आउट, राइट फ्रॉम सिंपल थिंग लाइक बैंक अकाउंट। व्हेन यू गो टू द बैंक ऑल्सो, बैंकर्स ऑल्सो ट्रबल। So this is very important that you have to give time to take out and look at, where all your money is. कई लोग बोलते हैं कि मेरे पास तो सब कुछ है, बॉन्ड्स है, पीपीएफ है, प्रोविडेंट फंड है, मैं ठीक कर रही हूँ ना, मैं ठीक कर रहा हूँ ना, आप क्या बोलते हो? तो ऐसे जब लोग बोलते हैं तो हम बुलाते हैं उनको कि प्लीज आप आकर बैठो और बोलो कि आपका महीने का खर्चा कितना है। अभी किसी का 50,000 खर्चा रह सकता है और किसी का 1 लाख का रह सकता है, या ज्यादा या कम। अभी आपके लाइफ सिचुएशन के हिसाब से ही तो ये कैलकुलेट होगा ना, कि आपके आपके पास जो जितना पैसा आपने इन्वेस्ट किया है वो इतने पैसे के लिए इतने सब जो जरूरतें हैं उसके लिए काफी है। आप याद रखो, हमारे केस में हम 2 लाइफ स्पैन्स का प्लानिंग कर रहे हैं, एक जब तक कि हम जिंदा हैं हमारे लिए, और दूसरा जब तक कि हमारे बच्चे जिंदा रहेंगे उनका भी, वो उनको भी लंबा लाइफ स्पैन है। हमारे ऑटिस्टिक जो बच्चे हैं उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, उनका लाइफ स्पैन लंबा रहने वाला है। हमारे फोरम फॉर ऑटिज्म में 65 ईयर ओल्ड लड़की है, और ये लंबा जीने वाले हैं, तो तब तक के लिए हमको उनके लिए पैसा रखना जरूरी है। दूसरा है, लोग बोलते हैं कि हमारे पास बहुत पैसा है, हम मेरे को प्लान करने का जरूरत नहीं है। श्रेया का एक बहुत सुंदर यहाँ पर एक केस स्टडी है जो वो आपको बताएगी कि जहाँ पर बहुत बड़ा प्रॉपर्टी में पैसा है, सब में पैसा है, और लोगों को लगता है कि हमने तो सब कुछ कर दिया है। मेन तो ये याद रखिए कि कितना भी पैसा अगर हो, उसको, अपने बच्चे को वो पैसे को एक्सेस करने को नहीं जमा, अगर ही दे कैनॉट रिमूव द मनी and spend it, or somebody is not there, you have not set the process for accessing the money for their daily requirement, then that is not a plan. You have failed miserably. So you have to sit with a professional to understand how do I keep, how much do I keep, and what is the process for making it available for my child, right? So what are the common mistakes that people make today? Quickly take you through this. एक है कि इंश्योरेंस का निगलेक्ट।
जब हमको तो पता है, सबको पता है कि मेडिक्लेम जरूरी है, लाइफ इंश्योरेंस भी जरूरी है, बट लोग बहुत कम ले लेते हैं। मैंने ऐसे भी केसेस देखे हैं जहाँ पर 1 लाख या 2 लाख का इंश्योरेंस ले रखा है, जबकि अब तो उनको पता है कि आजकल हॉस्पिटल्स में खर्चा बहुत ज्यादा होता है, इतने से काम नहीं बनता, आपको ढंग का मेडिक्लेम पॉलिसी लेना जरूरी है। सिमिलरली जो कमाने वाले लोग हैं, जो द पर्सन हु इज द अर्निंग फैमिली मेंबर, he she has to take a proper decent term life cover to protect the spouse and the child. जब जो अर्निंग मेंबर है, अगर गॉड फॉरबिड वो गुजर जाते हैं, तो वो जो पैसा कमा के ला रहे हैं वो बंद हो जाता है। तो इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस इस तरह से लेना चाहिए कि एक पूंजी आए जो वाइफ खुद के एक्सपेंसेस और बच्चों की देखभाल के लिए उस पूंजी से मैनेज कर पाए। तो ये करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये कितना चाहिए ये हम बताते हैं जब हम ये वन ऑन वन सेशंस करते हैं। फिक्स डिपॉजिट में पैसा रखना, ये आप याद रखिए, इस सेशन के एंड में आप कुछ याद भी नहीं रखेंगे तो चलेगा, लेकिन ये याद रखना कि महंगाई, जो इन्फ्लेशन है, वो हर साल 6% से ग्रो हो रही है एवरी ईयर। आज अगर 100 रुपया है आपका जो खर्च आप खर्चते हैं, नेक्स्ट ईयर यू विल नीड 106 रुपीज, ईयर आफ्टर दैट यू विल नीड 106 इंटू 6% मोर। This way, every year, that is how money inflation keeps affecting us. Most of us know that our parents have said, हमारे जमाने में तो 25 पैसे में ये मिलता था, वो मिलता था, अंडा मिलता था, ब्रेड मिलता था, लेकिन आज हमको पता है कि हर एक चीज कितनी महंगी है। दैट इज इन्फ्लेशन। सो जब फिक्स डिपॉजिट्स में पैसा रखते हैं और आपको टैक्स भरने के बाद 6% भी नहीं आता है, तो वो गलत है, आप अपना पैसा ग्रो होने को दे ही नहीं रहे। तो ये आपको अर्जेंट एक्शन लेना पड़ेगा कि हम कहाँ पर पैसा रखें, ताकि हमको एटलीस्ट 6% टैक्स भरने के बाद हाथ में आना चाहिए। फिर 6 भी नहीं, 6 से भी ज्यादा, एटलीस्ट थोड़ा पैसा ज्यादा आना जरूरी है। एड हॉक इन्वेस्टमेंट्स कोई भी आ गया, कोई इंश्योरेंस एजेंट आ गया, कोई बैंकर आ गया, कोई ब्रोकर आ गया, हमारे पड़ोस आ गए, हमारे फैमिली में कोई है, सबने बोल दिया कि हाँ मैंने ना ये प्रॉपर्टी लिया है, उधर मेरे को उसने बोला है कि वो डबल होने वाला है, तू भी ले ले मेरे साथ, हम लोग साथ में लेते हैं। ऐसे मैंने कितने लोगों को सुना है कि इस तरह के जल्दबाजी में बहुत ज्यादा पैसा देके लॉक इन कर लेते हैं। सिमिलरली अगर कहाँ पर कोई स्टॉक्स लेना है, करें, तो फिर अगर स्टॉक्स लेना है तो लोग बोलते हैं हाँ मैंने इस स्टॉक में बहुत ज्यादा पैसा बनाया है, और तुम भी ले लो, इसमें बहुत अच्छा पैसा बन जाएगा। तो इस तरह के एड हॉक इन्वेस्टमेंट्स मत करना। जब भी आप बैठ के एक प्लान करते हैं तो उसको ठीक से समझ के लेना, और जो आपका रिस्क एपेटाइट है, यानी हम सब लोग यूनिक हैं, हम सब ने पैसे को अलग अलग तरीके से देखा है। जो मेरा बचपन है, मैंने जो सीखा है, अगर मैं मुश्किलों से ऊपर आई हूँ तो मुझे पैसे का वर्थ बहुत डिफरेंट है। अगर और कोई है जिसको पैसा रहा है उसके बचपन में, उसका पैसे का नजरिया बहुत अलग रहता है, तो उसके हिसाब से रिस्क टेकिंग हमारा जो एबिलिटी है और कैपेसिटी है वो भी चेंज हो जाता है। तो उसके हिसाब से हमको ये जो नेक्स्ट पॉइंट है, एडवाइस लेके डिसीजंस लेना है पैसे के बारे में। और प्रॉपर्टी मेनिया, अननेसेसरी प्रॉपर्टी खरीद के अपना पूरा पैसा वहां लॉक इन करके रखना, ये भी गलत बात है। हम हमेशा बोलते हैं कि अगर आपका बिजनेस है तो बिजनेस में जो पैसा है और प्रॉपर्टी में जो पैसा है, ये दोनों इनलिक्विड, यानी आप इसको सडनली बेच नहीं पाते हो, आप उसके पोर्शन को भी बेच नहीं सकते हो। तो इस तरह का जो इन्वेस्टमेंट है वो, अगर आपके पास 100 रुपया है तो 50 रुपए से ज्यादा नहीं रहना चाहिए। 50 रुपए से ज्यादा एक्चुअली लिक्विड इन्वेस्टमेंट रहने चाहिए, जो आप बेचेंगे तो आपको एक दिन में पैसा आना चाहिए, या 2 दिन में, या 3 दिन में, ताकि जब आपको जरूरत हो तो आप पैसा निकाल सकते हो। बाकी जो रीजंस हैं वो हैं कि हमको कभी लाइफ में सिखाया नहीं गया है कि पैसे को कैसे समझना चाहिए, एंड हाउ डू वी हैंडल मनी। We suddenly, we get a check when we join our jobs,
and you start wondering, now what do I do about it? How much tax do I need to pay on it? Shall I go and spend the money? And then you look at all your peers and you decide, okay, fine, let me go and spend, and जो बचेगा उसको मैं invest कर लूंगा या कर लूंगी. So this is something that we are not taught in school, and there is complete lack of financial literacy unless people are reading and studying and understanding. Only then people will understand. You can understand, you yourself can understand, because although it is not very complex, but it is very vast. So you do need help, and you need to sit with people to spend time. Sit with people like us to spend time and understand. So somebody is asking, how can we assure that a child are getting proper financial support after a Suman Roy? You need to sit with people to understand how to understand what to do and how much is required. Similarly, obliging people, like I shared with you, please don't do that randomly. Don't land up, obliging every person who comes your way. Most important things, spend time. प्लीज डोंट कीप ऑन, धक्का मत देना, इसको जल्दी से जल्दी करना, ये प्रायोरिटी है. मनी, रिसोर्सेस, पैसे की जरूरत है. सारे डॉक्यूमेंटेशन को स्ट्रीमलाइन करना, एक फाइल बनाना घर पे, जहां पर एक शीट ऑफ पेपर में आप सब लिखे कि मैंने कितना पैसा डाला है और उसका आज का वैल्यू क्या है. उसमें आपके पैन, आधार, पासपोर्ट, सारे डॉक्यूमेंट्स रहने चाहिए, बैंक पेपर्स रहने चाहिए, आपके घर के पेपर्स, आपके इन्वेस्टमेंट के पेपर्स, ये सब आपको सेफली रखना है. जितना जमेगा उसका सॉफ्ट कॉपी भी बना कर रखो, और इसको अपने फैमिली मेंबर के साथ शेयर करो कि मुझे अगर कल कुछ हो गया तो तुझे पता है कि कहाँ से ये पैसा आप एक्सेस कर सकते हो, उसके पासवर्ड्स क्या है, एप्स क्या है, ऑनलाइन क्या अकाउंट है, और फिजिकली क्या क्या है, ये सब आपने सबको बताना है. सिमिलरली है पीपल, किनको मैं गार्डियन अपॉइंट करूं, किनको ट्रस्टी अपॉइंट करूं, किनको एडवाइजर, ये पूरा आज श्रेया आपके लिए कवर करने वाली है. सिमिलरली लीगल, यूडीआईडी कैसे बनाना है, गार्डियनशिप सर्टिफिकेट का मतलब क्या है, विल्स एंड ट्रस्ट. एंड फाइनली, प्लीज फाइनेंशियल कोच के साथ आप मिलिए, बैठिए और जानिए कि ये सब किस तरह से पैसे को इकट्ठा करना है, ताकि आपका भी फ्यूचर और आपका रिटायरमेंट और आपका हेल्थ, ये सब के लिए पैसा बचना बचना चाहिए. आपका लाइफस्टाइल ठीक से रहना चाहिए, और आपके बच्चे का भी, राइट. हमारे बहुत सारे नीड्स भी रहते हैं बाकी, हमारा खुद का रिटायरमेंट, हमारे हेल्थ प्रॉब्लम, पेरेंट्स हैं हमारे, उनके हेल्थ रिलेटेड, दूसरा बच्चा है उसके लिए एजुकेशन, मैरिज, वेकेशन, हमको जाना है, घर खरीदना है, गाड़ी लेनी है. ये सब करने के लिए लोग पूछते हैं क्या मुझे लाइफ लॉन्ग काम करना पड़ेगा. तो हम बताते हैं कि आपने कितना सेविंग्स किया ये बताओ, और आपकी जो फ्यूचर नीड्स है ये क्या है बताओ, और हम आपको बताएंगे कि आप रिटायर हो पाएंगे या नहीं. करेक्ट. सो जब आपने ये सब कर दिया लीगली एंड फाइनेंशियली, तब आपको समझेगा कि हाँ, मैंने मेरे बच्चे के द्वारा जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो मैंने कर दिया है. देन यू विल रिमेम्बर द लास्ट मिनट व्हेन वी टेक द लास्ट ब्रेथ दैट we are okay, we have done whatever is required to be done. Just quickly to tell who we are, although it's already been introduced, we are a goal-based planning firm in existence for the last 20 years, and I set up this wing specially to take care of special needs parents' needs. And our whole role is that आपने अगर लिख दिया ना गोल्स, हम वो गोल्स लिखने के लिए भी आपको मदद करेंगे, तब वहां तक पहुंचाना हमारा काम है, राइट. तो ये था हमारे बारे में. हमारे काफी पेरेंट्स के वीडियोस भी हैं जो मैं शोभा के साथ शेयर करूंगी, और वो आपके साथ शेयर करूंगी. एंड ये हमारा फोन नंबर्स है, और ये हमारा ईमेल आईडी है. एंड में शोभा को ये मैं फिर से शेयर करूंगी. आप लोग प्लीज अपॉइंटमेंट्स भी ले सकते हैं. थैंक यू, एंड ओवर टू डियर श्रेया. जैसे आप सब लोगों ने देखा, श्रेया इज अ वेरी वेरी, इंट्रोडक्शन तो आपका हो गया है, बट श्रेया ऐसी व्यक्ति है जो अनुभव से बात कर रही है मेरी तरह. वो बहुत ज्यादा पेरेंट्स के लिए उन्होंने ऑलरेडी काम कर चुकी है, और वो अभी भी ये एक्टिवली करती हैं, और लोगों को हेल्प करती हैं ये समझाने में कि लीगल
इश्यूज क्या है और उसके लिए क्या क्या करना जरूरी है। ओवर टू यू श्रेया। Thank you, Chitra. I just want to be able to share my screen. Yes, I can. Yeah. Shobha, in the end, we would like to run a feedback, okay, for all parents also, so that we know what their questions are. मेरी स्क्रीन दिख रही है सबको? Yes, Shreya, very clear. Yes, ma'am. तो आई थिंक ये वाला पार्ट मैं थोड़ा स्किप करना चाहूंगी, बिकॉज आई थिंक चित्रा ने बहुत ही ब्यूटिफुली कवर किया कि आज के चैलेंजेस क्या है। आई थिंक हम सब बहुत अच्छी तरह ऑलरेडी समझते हैं। मैं आपको बस थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देना चाहती हूँ कि आप फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में ना और लीगल प्लानिंग के बारे में इंडिविजुअली मत सोचिए। व्हेन यू थिंक अबाउट इट, आप उसका बेनिफिट समझिए फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू। आप आज किस किस बारे में वरी करते हो? आप सोचते हो कि जनरली हमारे बच्चों के लिए डिसीजंस कौन लेगा, अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी होगी व्हाट विल हैपन, housing, what will happen, where will our child stay, right? Social acceptance, that उठेंगे बैठेंगे किसके साथ, बातें कैसे करेंगे, विल वी अटेंड एनी सोशल फंक्शन। तो सोशल एक्सेप्टेंस से लेकर जनरल डिसीजन मेकिंग तक, हम ये जो सब आप चिंता डे टू डे में करते हैं, प्लीज अंडरस्टैंड दैट all of this has a part to play in your decision making for financial and legal planning as well. तो जितना जल्दी आप वो करेंगे, वो समझेंगे, उतना आपका इन सब चीजों के बारे में भी चिंता कम होगी। तो मैं भी कुछ केस स्टडी से स्टार्ट करना चाहूंगी, सिमिलरली जैसे चित्रा ने किया। हमारे पास एक केस स्टडी आई वेर एक 31-year-old बॉय विद ऑटिज्म, जिनका लेवल ऑफ डिपेंडेंस मीडियम था। उनके लिए कोई फ्यूचर प्लानिंग नहीं की गई थी। तो यूजुअली हमने देखा था कि वो जिस सेंटर में जाते थे, वो अपनी मदर के साथ ज्यादातर जाते थे। उसके बाद वो शाम में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज करते थे, वहां भी उनकी मदर उन्हें लेके जाती थी। तो प्राइमरी गार्डियन हमें समझ आया कि मदर थी, एंड शी वन डे पास्ड अवे अनएक्सपेक्टेडली। तो इससे क्या हुआ कि सारा का सारा जो प्लानिंग का प्रेशर था वो एकदम से फादर पे आ गया, हु हैड अ वेरी हाई ट्रैवलिंग जॉब, और उनको ये ट्रांजिशन संभालना बहुत डिफिकल्ट हुआ। और इवन दो वहां पे फाइनेंशियल रिसोर्सेज की इतनी ज्यादा कमी नहीं थी, ट्रांजिशन प्लानिंग ना होने के कारण उनकी बहुत सारी एक्टिविटीज, सोशल एक्टिविटीज छूटती गई। उनका अटेंडेंस स्कूल में थोड़ा कम हो गया, उनका शाम में स्पोर्ट्स छूट गया। तो हमने रियलाइज किया कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है टू थिंक अबाउट, कि हम अपने बच्चों के बारे में जब सोचते हैं, ये प्लानिंग करनी इसलिए जरूरी है दैट आज वो जो लाइफस्टाइल जी रहे हैं वो वैसा या उससे बेटर लाइफस्टाइल कंटिन्यू कर पाए हमारे बाद भी। तो ये माइंड में लेकर हम अपनी सारी प्लानिंग करते हैं कि हम चाहे अपने रिसोर्सेज इन्वेस्ट करें, चाहे हम लीगल प्लानिंग करें। मैं एक और एग्जांपल देना चाहूंगी विच इज वेरी यूनिक, कि चंडीगढ़ शहर में देयर वाज अ फैमिली, 40-year-old गर्ल, जिनके पास they had a very big property जहाँ पे वो सब रहते थे, but parents unfortunately passed away in an accident. So both of them passed away together. And even though the girl, उसका जो independence level था वो बहुत high था, she used to, वो market जाती थी अपना थोड़ा बहुत, she was very well able to take care of herself. But of course financial ध्यान वो अपना नहीं रख सकती थी। इस कारण उनके लिए इतना बड़ा इशू क्रिएट हुआ दैट उनकी बाकी इमीडिएट फैमिली सारी अब्रॉड रहती थी। तो एसेट होने के बावजूद फाइनेंशियल प्लानिंग ना करने के कारण उनके लाइफ में ये चैलेंज क्रिएट हुआ कि लिक्विडिटी नहीं था एसेट्स का। तो इस घर का क्या करें? तो हमारे पास जब ये केस आया तो उनके नेबर्स लेकर आए कि मैम दे हैव एन एसेट, इस घर को बेचें कैसे। बट जब तक क्लियर टाइटल नहीं आगे डिफाइंड था, कोई आपने उन्होंने अपने विल में नहीं लिखा था एग्जीक्यूटर कौन है, इट बिकेम अ ह्यूज चैलेंज। तो प्रॉपर्टी का मिसयूज हुआ, जो उनके वहां पे केयर गिवर थे, दीज थिंग्स हैव टू बी थॉट थ्रू बाय द पेरेंट्स देमसेल्फ। उनके अलावा ये डिसीजन बहुत मुश्किल होता है कि कैसे लेंगे। तो दो चीजें हैं, एक है आप अपने एसेट्स
की प्लानिंग कर रहे हैं, दूसरा है आप अपने एसेट्स पे रिटर्न चाहते हैं, इन सब के बारे में आज सोचना बहुत जरूरी है। थर्ड केस मैंने आपको ऑलरेडी स्टार्टिंग में अपनी फैमिली के बारे में बताया, दैट माय ओन ब्रदर हु इज ऑटिस्टिक, जब वो 20 इयर्स का था तो वी स्टार्टेड प्लानिंग फॉर हिम फाइनेंशियली। और हमारे केस में वी ऑल्सो रियलाइज कि प्लानिंग राइट इज इम्पोर्टेंट। कि जैसे कि मान लीजिए हमारे केस में गलती क्या हुई थी कि हमारे विल में और ट्रस्ट में मेरी ग्रैंड मदर को हमने ट्रस्टी बना दिया, हमें उन्हें जिम्मेदार ठहरा दिया, आप ऐसे समझिए। अब बाद में हमें ये समझ आया कि मेरी ग्रैंड मदर को ऐसा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देना कितनी रिस्की बात है, जिनकी उम्र इतनी ज्यादा है। देर इज नो चांस कि वो मेरे ब्रदर को आउटलिव करेंगी। तो ऐसे सिचुएशन में उनका नाम पे रिस्पॉन्सिबिलिटी देना वाज वेरी वेरी ट्रिकी। तो हमने धीरे धीरे समझा कि हमारी जैसी फैमिलीज को कैसे स्ट्रक्चर्स चाहिए, क्या क्या रूटीन चाहिए, ताकि ये सारी मिस्टेक्स हम आगे ना करें। तो इन सब सीखों के साथ हमने आपके लिए ऐसे प्रोग्राम्स बनाए जहां आप हमारी गलतियों से सीख सकें, आप हमारी लर्निंग से सीख सकें। मैं एक पॉजिटिव नोट पे भी एंड करना चाहती हूँ केस स्टडीज को, कि हमने एक 18-year-old पर्सन के लिए एक ट्रस्ट बनाया और विल्स बनाए उनके पेरेंट्स के लिए, वेयर द गर्ल वाज, उनका लेवल ऑफ इंडिपेंडेंस लो था बट वर्बल थी, बहुत सोशलाइज करती थी अपने आसपास पेरेंट्स के साथ और अपने फैमिली के साथ। उनके केस में हमने रियलाइज किया कि जैसे हमने ये ट्रस्ट बनाया, इट ब्रॉट द फैमिली क्लोज टुगेदर। तो जैसे उनके जो दो कजन्स थे जो ट्रस्टीज बने, उन्होंने सडनली उसकी लाइफ में इन्वॉल्वमेंट अपना बढ़ा दिया, वो ज्यादा एक्टिवली इन्वॉल्व होने लगे। हमने उनसे पूछा, जब हम आगे जाके डॉक्यूमेंट्स डिस्कस करेंगे, उनकी लाइक्स और डिसलाइक्स फैमिली बेटर समझने लगी। तो जब हम पूरी फैमिली को इकट्ठे ले आए इस बारे में, आई रियलाइज्ड कि पूरी फैमिली जो इस लड़की की इतनी चिंता करती थी, दे हैड मोर आंसर्स। तो उससे सबका बहुत ज्यादा टेंशन रिलीज हुआ। तो आप ये ना सोचें कि आपके लिए समय, अभी तो टाइम है, आपका बच्चा छोटा है अभी, आप आगे जाके सोच सकते हैं। द आइडिया इज कि आप प्लानिंग ऐसी करें कि आपका बच्चा कितने भी साल का हो, प्लानिंग ऐसी होनी चाहिए दैट इट अडेप्ट्स टू एवरी स्टेज ऑफ योर लाइफ। चाहे वो भी स्कूल जा रहा है, चाहे वो अभी वोकेशनल सेंटर जा रहा है, चाहे वो भी अर्ली इंटरवेंशन में कहीं भी हो, आपकी प्लानिंग पूरी लाइफ स्पैन के साथ आगे बढ़ती जाती है। आपको सारे डिसीजंस आज नहीं लेने, पर आपको ऐसे डिसीजंस लेने हैं जो आगे चलकर आपका साथ दें। तो वो कैसे करेंगे? इसके लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स बनाने होंगे। मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगी बहुत सिंपल लीगल डॉक्यूमेंट से, जैसे लीगल गार्डियनशिप और यूडीआईडी कार्ड। मैं ऑडियंस से पूछना चाहूंगी कितने लोगों के पास यहाँ पे यूडीआईडी कार्ड है और लीगल गार्डियनशिप है? आप बता सकते हैं अगर चैट में कितने लोगों के पास यूडीआईडी है और लीगल गार्डियनशिप है? हम लोग के पास यूडीआईडी है और रेलवे कंस्ट्रक्शन का भी है फॉर्म पेपर ग्रेट, ग्रेट, और डिसेबिलिटी का भी पेपर है। बहुत बढ़िया। तो जो डिसेबिलिटी का पेपर है, जिन लोगों के पास खाली, वो उसको हाँ, यूज करके यूडीआईडी भी अप्लाई कर सकते हैं। और नहीं सिमिलरली, यूडीआईडी भी है। परफेक्ट। तो जिन लोगों ने अभी नहीं अप्लाई किया है, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन यूडीआईडी के पोर्टल पे। और सिमिलरली लीगल गार्डियनशिप आपको सिर्फ तभी चाहिए जब आपका चाइल्ड ओवर 18 ईयर्स हो जाए। इसका लॉजिक बहुत ही सिंपल है। व्हेन योर चाइल्ड टर्न्स 18, क्योंकि वो एक अडल्ट बन गया है, आपको ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है दैट अब आप उसके बिहाफ पे साइन नहीं कर सकते। जैसे आप 18 ईयर के हो जाते हैं खुद, अगर नाउ इफ व्हेन आई टर्न 18, माय पेरेंट्स कैन नो लॉन्गर साइन और टेक डिसीजंस ऑन माय बिहाफ। तो आपको लीगली प्रूव करने के लिए कि आप अभी भी अपने चाइल्ड के बिहाफ पे ऐसा कर सकते हैं, आपको एक लीगल गार्डियनशिप की जरूरत है। तो यूडीआईडी, अब आप, मुझे लगता है बहुत ही अच्छी बात है, आप बहुत सारे लोगों के पास है। बट ऐसा कहा जा रहा है गवर्नमेंट में कि बहुत सारे आगे जाके इसके बेनिफिट्स इस कार्ड से भी लिंक्ड होंगे। तो जिन पेरेंट्स के पास अभी तक सिर्फ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, मैं उन्हें इनकरेज करूंगी टू अप्लाई फॉर यूडीआईडी कार्ड। लीगल गार्डियनशिप के बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल में और बता देती हूँ। आप
कौन कौन अप्लाई कर सकता है लीगल गार्डियंस के लिए? जो पेरेंट्स हैं, बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं। मान लीजिए अगर एक पेरेंट नहीं है तो सिबलिंग साथ में मिलकर अप्लाई कर सकता है। इनके एब्सेंस में रिलेटिव्स भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आइडिया ये है कि जब बच्चा 18 इयर्स का हो जाए, आप उसके बिहाफ पे कंफर्टेबली डिसीजंस ले पाए लीगली, उसके लिए आप ये अप्लाई करेंगे। और वो आप कैसे कर सकते हैं? इस वेबसाइट पे जाकर thenationaltrust.gov.in पे अगर आप इस लिंक पे जाएंगे तो आप इस लिंक पे जाके एक फॉर्म भरेंगे जहां पे वो आपसे कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन मांगेंगे, आपका एक फोटोग्राफ मांगेंगे, आपकी आईडी मांगेंगे, सिग्नेचर्स मांगेंगे। तो जब आप ये सब फिल कर देंगे उसके बाद आपका एप्लीकेशन इवैल्यूएट होगा और आपको लीगल गार्डियनशिप मिलेगा। अब मैं आती हूँ अगले डॉक्यूमेंट पे जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है पर आपके लिए समझना जरूरी है, विच इज द ट्रस्ट। अब ट्रस्ट को आज हम सिंपली सिर्फ ऐसे समझेंगे कि ट्रस्ट क्यों जरूरी है, पहले ये समझते हैं। ठीक है, इस पे एक सेकंड बाद आते हैं। ट्रस्ट हम इसलिए पहले समझते हैं कि जब आप विल बनाते हैं अपना, विल और ट्रस्ट में क्या अंतर होता है? विल आप पेरेंट्स बनाते हैं टू राइट डाउन कि मेरे पास जो भी ये रिसोर्सेज है, मेरे पास कुछ पैसे हैं, एक मेरा फ्लैट है, या जो भी आप जहाँ रहते हैं, जो भी आपके पास रिसोर्सेज है वो मेरे बाद कहाँ जाएंगे। अब हमारे केस में सिर्फ ये बताना कि वो कहाँ जाएंगे इज नॉट इनफ। आप कह देंगे कि ये मेरे बच्चे को जाएंगे या मेरे 2 बच्चे हैं उन दोनों के बीच में डिवाइड होंगे। बट जो हमारा फैमिली मेंबर है विद स्पेशल नीड्स, उसका वो रिसोर्स मैनेज कैसे होगा, वो कैसे बताएंगे? दैट अ विल डज नॉट मैनेज। विल सिर्फ ये कहता है दैट मान लीजिए मेरे पास, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपका टोटल कॉर्पस अगर 10,000 रुपीज है तो आप बोलते हैं 5,000 रुपीज आप एक बच्चे को दे दीजिए, 5,000 रुपीज आप एक बच्चे को दे दीजिए। ठीक है, बट आपका जो पर्सन विद चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स है, ऑफ कोर्स मैं 5,000 सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे ले रही हूँ, क्या वो रिस्पॉन्सिबली उसे मैनेज कर पाएगा? क्योंकि असल में तो ये अमाउंट उससे बहुत ज्यादा बड़ा होने वाला है, बिकॉज इट्स गोइंग टू बी अ रिसोर्स फॉर देयर लाइफ टाइम। तो उस रिसोर्स को मैनेज करने के लिए एक ट्रस्ट डॉक्यूमेंट बनाया जाता है। अब ये ट्रस्ट डॉक्यूमेंट क्या है? तो इस ट्रस्ट डॉक्यूमेंट में 3 तरह के मेन पार्टीज होते हैं, पेरेंट्स, ट्रस्टीज और आपका चाइल्ड। आपका चाइल्ड इज द बेनिफिशियरी क्योंकि उसके बेनिफिट के लिए ये बनाया जा रहा है। पेरेंट्स जो इस डॉक्यूमेंट के रूल्स बनाएंगे, जो बताएंगे कि इस डॉक्यूमेंट को कैसे बनाना है, उन्हें बोलते हैं ऑथर्स ऑफ द ट्रस्ट या सेटलर्स ऑफ द ट्रस्ट, बिकॉज आप ये सेटलमेंट के मालिक हैं। ठीक है, अब आप इस तरह से सोचिए कि मान लीजिए अगर आप एग्जाम्पल में हमेशा ये यूज करती हूँ कि आप इमेजिन कीजिए दैट आप एक किंगडम में रहते हैं और आप उस जगह के राजा या रानी, पेरेंट्स को आप राजा रानी का दर्जा दे दीजिए। अब उनका जो आगे चाइल्ड है, जो प्रिंस या प्रिंसेस है इक्विवेलेंट, आप उसके लिए आप अपना रिसोर्सेस छोड़ के जाना चाहते हैं। ठीक है, आप अपना ट्रेजर उसके लिए छोड़ के जाना चाहते हैं, बट अभी वो बच्चा छोटा है, वो आप सोचते हैं कि वो शायद ध्यान नहीं रख पाएगा। तो आप क्या करते हैं? आप अपने आसपास ऐसे कुछ लोगों को चुनते हैं, आपकी आर्मी बनाते हैं जो आपके डिसीजंस पे एक्शन लेगा टू मेक श्योर कि ये किंगडम सही सलामत आगे बढ़ता रहे, ग्रो करता रहे। तो इन सोल्जर्स, इस आर्मी को चूज करने के लिए आपको सबसे पहले देखना चाहिए होगा कि हु डू यू ट्रस्ट। इस पे आप लोगों ने ऑलरेडी बहुत देर चर्चा की, बट अनफॉर्चुनेटली आप ये समझिए दैट एज पेरेंट्स अगर आप किसी को भी अपॉइंट नहीं करके जाएंगे तो वो बहुत बड़ी कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। तो आपको अपने फैमिली में अपने आसपास पर्सन्स को आइडेंटिफाई करना है जो फ्यूचर केयर टेकर का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, who will act on the advice of the parents। ठीक है, तो आपको ये आज आइडेंटिफाई करना है। अब ये ट्रस्ट होता क्या है? आपके बाद ये सारे रिसोर्सेज जब एक ट्रस्ट में चले जाते हैं तो फ्यूचर केयर गिवर्स, जो फ्यूचर केयर टेकर्स हैं, जो ट्रस्टीज हैं, वो इन रिसोर्सेज को यूज करके आपके बच्चे का ध्यान रख सकते हैं उन नियमों के अनुसार जो आपने आज तय किए। तो अब आप कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कितने ट्रस्टीज चाहिए, कैसे सिलेक्ट करें। तो मैं हमेशा कहती हूँ आपको 3 ट्रस्टीज चाहिए कम से कम, सिंपली बिकॉज अगर आप एक ही ट्रस्टी रखेंगे उन्हें कुछ हो जाएगा तो फिर आगे क्या, राइट? तो उस हिसाब से आप 2 से 3 ट्रस्टी जरूर रखिए।
उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो इंश्योर करेंगे कि आपके जो भी रिसोर्सेज हैं वो सेफ रहें, वो आपके बच्चे के लिए अवेलेबल रहें। अब थर्ड क्वेश्चन है, ट्रस्टी और केयर टेकर सेम होता है क्या? तो जरूरी नहीं है, जरूरी ये होना चाहिए कि जो आपका ट्रस्टी है वो फाइनेंशियली थोड़ा सैवी हो, वो समझे कि इन चीजों का ध्यान कैसे रखा जाता है। जरूरी नहीं है, मान लीजिए आपके बाद आपकी कोई फैमिली में ऐसा पर्सन है जो आपके बच्चे से बहुत ज्यादा क्लोज है, डे टू डे उनका ध्यान रख पाएंगे, बट फाइनेंशियली बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है आपका प्लानिंग करने में, तो आप किसी और को ट्रस्टी बना सकते हैं। एंड उनका कम्युनिकेशन अगर अच्छा रहेगा तो वो आपस में मिलजुल कर बहुत अच्छे से प्लानिंग कर सकते हैं। ट्रस्ट की क्या जरूरत है जब विल ऑलरेडी आपने बनाया है? इसका मैंने आपको ऑलरेडी उत्तर दिया दैट अगर विल ऑलरेडी आपने बनाई है वो सिर्फ ये बताएगा दैट कितना पैसा किसको देना है, बट उस पैसे का ध्यान कैसे रखना है वो ट्रस्ट बताएगा। ट्रस्ट का राइट टाइम सेटअप करना जितना जल्दी हो सके उतना है। इसका कारण सिंपल है, आपके होते होते आप ट्रस्टीज को जितना सिखा देंगे अपने बच्चों के बारे में, अपनी फैमिली के फाइनेंसेस के बारे में, उतना कंफर्टेबल वो बाद में रहेंगे। आप जितना डिले करेंगे उतना ही आपको नहीं मालूम पड़ेगा कि आपके सिस्टम में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। आपके सामने रहते जो जो प्रॉब्लम्स आएंगे आप अपने हाथ से उसको ठीक करके जा सकते हैं। अगर ट्रस्ट नहीं है तो अनफॉर्चुनेटली इंडिया में आज ट्रस्ट के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। फिर राम भरोसे, आपकी फैमिली भरोसे जितना आपके बच्चे का कोई ध्यान रख सकता है उतना रखेगा, बट किसी की भी कोई लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी उस केस में। आपको हर स्टेज पे इन्वॉल्व रहना है अब कोई किसी और अगर आप ऐसा नहीं करते उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपकी फैमिली के लिए बहुत टफ हो सकते हैं। आपके जैसे मान लीजिए अगर आपके 2 बच्चे हैं तो आपने एक पर्सन के लिए ट्रस्ट नहीं सेटल किया, तो आपके दूसरे उसके सिबलिंग के लिए भी उतना ही प्रेशर है टू फिगर आउट कि आप क्या करना है। तो आप अपने आसपास सबकी लाइफ आसान कर रहे हैं बाय मेकिंग अ ट्रस्ट। अब बहुत बार लोग ऐसा करते हैं, विल बनाते हैं ट्रस्ट नहीं बनाते, जो मेरे हिसाब से बहुत ही एसेंशियल स्टेप है। ट्रस्टीज को ईमानदारी से पूछ कीजिए, उनसे बात कीजिए कि क्या वो कंफर्टेबल है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में। और लेट ट्रस्ट सेटअप करते हैं जिससे उन्हें मालूम नहीं पड़ता कि उनका जो बनाया हुआ सिस्टम है वो एक्चुअली में काम कर रहा है कि नहीं। तो मैं आपको सिंपली एक बार बताती हूँ कि अगर आपको ट्रस्ट बनाना है तो आप कैसे बनाएंगे। ठीक है, सबसे सिंपल तरीका क्या होता है, आप किसी लीगल एक्सपर्ट से हेल्प लेंगे, जैसे हम आपकी मदद कर सकते हैं इस केस में। वो आपको एक लीगल डॉक्यूमेंट बनाने में हेल्प करते हैं जिसमें सारी फाइनेंशियल प्लानिंग की आगे लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या है वो आपको मैप आउट करके देते हैं। फिर उसके बाद आप उसको लेकर एक पैन कार्ड अप्लाई करते हैं अपने ट्रस्ट डॉक्यूमेंट के लिए, और आप इस पैन कार्ड और डॉक्यूमेंट के साथ एक बैंक अकाउंट खोलते हैं। जैसे मान लीजिए आपके बच्चे का नाम अगर आशीष है तो आप एक आशीष प्राइवेट ट्रस्ट अकाउंट खोलते हैं जो मैनेज होता है सेटलर्स और ट्रस्टीज के साथ मिलकर। तो आपके जाने के बाद आपका ट्रस्टीज ये बैंक अकाउंट इजीली मैनेज कर सकते हैं फॉर योर सन आशीष। अब आई ऑल्सो नो कि थिंकिंग अबाउट क्राइसिस, डेथ, ऑल ऑफ दीज थिंग्स कैन बी वेरी ओवरवेलमिंग। आई ऑल्सो नो कि बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ फैमिली मेंबर्स तैयार हो जाते हैं इन चीजों के बारे में सोचना, बट कुछ लोग शायद तैयार नहीं हो पाते, तो सबको सेम पेज पे लाना डिफिकल्ट हो जाता है। बट मेरा मानना ये है कि आज इसके बारे में ना सोच के हमें सिर्फ शॉर्ट टर्म रिलीफ ही मिल सकता है। अगर हम आज के गोल्स पे इतना ज्यादा फोकस करें कि हम आगे के बारे में ना सोच पाए, उससे और प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें, वेरिएबल्स हैं जो हमारे कंट्रोल के बाहर हमेशा रहेंगे। वी कांट कंट्रोल द फ्यूचर। तो उसके लिए आज हम प्रेजेंट में जो जो कर सकते हैं वो करना बहुत जरूरी है। और बहुत तो बोलते हैं कि हम कैसे ट्रस्ट करें किसी को अपने साथ। तो आप मुझे ये बताइए, अगर आप आज ये डिसाइड नहीं करेंगे कि आपके बाद आपके बच्चे का ध्यान कौन रखेगा, तो उसके बिना कोई स्टेप अप कैसे करेगा? आपकी गाइडेंस के बिना कोई कोई भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे उठा पाएगा? सो यू आर द बेस्ट पर्सन टू आंसर दिस क्वेश्चन, नो मैटर हाउ डिफिकल्ट दिस क्वेश्चन इज। तो आज अपने आप से डिफिकल्ट सवाल पूछिए, अनकंफर्टेबल सवाल पूछिए, जिससे आपका कल बहुत कंफर्टेबल बन जाए। तो मैं यहाँ पे स्टॉप करूंगी टू सी कि अगर किसी के पास कुछ क्वेश्चंस है तो।
I think we're going to share the poll now first, right? Excuse me, Navneet, ma'am. please share Yeah. the poll. Ma'am, may I? हाँ. Yeah. Participants, please आपका क्वेश्चंस कुछ भी होगा तो मैसेज बॉक्स में डाल दीजिए। अगर आपको बात करनी है तो अनम्यूट करके बात कर लीजिए। Hello, ma'am. This is Ravinder here. Yes. Yeah, who could be trustees? Like, is it an organization or it is amongst the family members or family friends? So it is your family members. आप अपने brother, sister, उनके बच्चों, depending on age. Basically, Okay. आपका गोल ये रहना चाहिए that अगर आप अभी young हैं, right, और आपके बच्चे अभी छोटे हैं, under the age of 16 है, तो आप अपने brother, sister को choose कर सकते हैं. But if let's say if your child is an adult, अगर आपके बच्चे बड़े हो गए हैं, तो आप आगे जाके उनके siblings को future में consider कर सकते हैं as trustees. Okay. Thank you. Ma'am, I have a sore throat. I can't speak. I put my question in the chat box. Could you please answer? Oh yes, that you have a UDID certificate for 4 years. Could we still plan? She has very mild autism symptoms. हाँ जी, तो आप चित्रा, आई थिंक इसके बाद ये तो आप 4 years के बाद दोबारा evaluate करेंगे. The medical professionals will evaluate and give you an opinion. तो आपको उसकी चिंता कुछ करने की जरूरत नहीं है, बट आप ट्रस्ट फिर भी प्लान कर सकते हैं. Thank you. Yeah. Ma'am, I have one question. Hello. Yes, please. Ma'am, Yes, ma'am. I've never heard UID. You don't know? UDID. No? UDID. हाँ. Yeah. So I don't know what is the full form of that. Can you tell me? Unique Disability Identity Card. Okay. Thank you, ma'am. But सोपान I think is at the forefront. सोपान ने जितना काम यहाँ पर किया है UDID के बारे में, I don't think anybody else has. Yeah. Yeah, Suman. Yeah, ma'am. I'm special educator from Mumbai Municipal Corporation. As you know, ma'am, our parents are from very low financial and educational strata. So I don't think they will understand this will and trust thing. But I specifically think that financial management is very essential for them. So can you suggest anything like LIC policies or what help they can get and what they can do for their child? See, Suman, I've done some sessions for your municipal school parents also, and I've spoken to parents where they earn 500 rupees a day, हाथ गाड़ी लेबरर का Yes. काम. Yes, ओके, yes, ना ma'am. उधर हम लोग क्या बोलते हैं मेन कि आप एटलीस्ट बैंक अकाउंट तो खोलिए और उसमें आप जो पैसा डालते हैं आप पैसा डालिए वहां पर. नहीं तो हाथ में जो पैसा आता है वो सब उड़ जाता है. अभी उसमें वो बोलते हैं कि हमको तो खर्चे के लिए फुर्ता ही नहीं है तो हम कैसे सेव करें. लेकिन सेविंग्स क्या है ना, कम से कम पैसे से भी शुरुआत की जा सकती है. ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा पैसा होगा तभी हम सेविंग करेंगे और तभी हम इन्वेस्ट करेंगे, ऐसा नहीं है. थोड़े थोड़े से कर सकते हैं और जब नीड भी उसी हिसाब के होते हैं. करेक्ट. तो मेन तो ये है कि एटलीस्ट मेन जो सिंपल सिंपल डॉक्यूमेंट्स जो चाहिए वो सबके रहने चाहिए. जो आधार पैन है, फॉर अगर सिर्फ हस्बैंड का है तो स्पाउस का भी रहना चाहिए, बच्चों का भी रहना चाहिए. और बैंक अकाउंट अगर आप खोल रहे हैं, आप सिंपल पब्लिक प्रोविडेंट फंड में पैसा डाल रहे हो या फिर आप सिंपल एफडी से शुरुआत करते हैं, वहां करो. ना कि डायरेक्टली लाइफ इंश्योरेंस के पास
ऐसा इंश्योरेंस के जो महंगे वाले प्रोडक्ट्स हैं वो मत करना, वो हमारे लिए ठीक नहीं है। सिंपल सिंपल जो आज बैंक में गवर्नमेंट के द्वारा भी जो मिलते हैं, वो जो एकदम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है ना, उनके लिए मैं वो सजेस्ट करती हूँ, ताकि उनको एक सेविंग्स का हैबिट तो लगे और वो पैसा निकाल भी पाएंगे। Yes. Yeah, ma'am, financial literacy is very poor in our parents' case. And their needs are also different, like daily livings and meeting their day-to-day life is also very tough हाँ, for them. करेक्ट So, करेक्ट। yeah, so नहीं तो we'll, सी, आप ऐसा सोचो सुमन जी कि कोई अगर 5,000 कमा रहे महीने का या 10,000 कमा रहे, करेक्ट, अभी उसमें से वो उसको खर्चे के लिए बहुत पैसा लगने वाला है आपके सिर्फ रोटी कपड़ा और मकान जो है उसमें ही बहुत खर्चा yes, हो जाता है, राइट। और उसके बाद आता है एजुकेशन, फिर हेल्थ, अगर मेडिकल आप देखने गए और अगर थेरेपी वगैरह है तो फिर पैसा बहुत ज्यादा लगता है। तो इसके लिए yes, हम तो ऐसा सीनियर से पैसा तो निकाल नहीं सकते हैं, yes, लेकिन बाकी जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको सबको काम करना पड़ेगा, अर्निंग करनी पड़ेगी। और जैसे जैसे हमारे स्पेशल नीड्स बच्चों का भी आप अगर समझ के लें कि वो कुछ काम कर सकते हैं या फिर वो किस तरह से हाथ जोड़ सकते हैं और पेरेंट्स के साथ एक छोटा सा कुछ बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। जैसे कितने लोग हैं जो तोरण बनाते हैं, कितने लोग yes, हैं जो कुछ ना कुछ सिंपल चीज बनाते हैं जो जिससे एक आमदनी मिल सकती है, करेक्ट। तो ये पेरेंट्स को सोचना पड़ेगा कि हम किस तरह से हमारे बच्चों को भी एक वोकेशन दें और एक सहायता हम बनाएं कि कितने पेरेंट्स, मुझे पता है कि वो घर पे खाना बना के बेचते हैं। yeah, कुछ ना कुछ तो आप में कुछ तो एक स्किल रहेगा ना, yes, तो आपको वो सोचना पड़ेगा कि ये क्या है जिससे मैं पैसा बना सकती हूँ, या मुझे yeah, उसका जरूरत तो पड़ने ही वाला है फ्यूचर में, ताकि मैं दूसरे को तो मेरे को हाथ नहीं फैलाना है। yes, ma'am. हमारा मोटिव तो मैम वही होता है कि वी हैव अवर स्कूल स्टिल 18 of their age. So after that, they should be financially independent. They should earn their own. At least if they can earn 100 रुपया भी कमाएंगे तो भी वो ठीक है, लेकिन कुछ तो कुछ काम, और वो काम भी उनको करना चाहिए कि ना कि खाली बैठना है घर पे. We all know that empty mind is devil's workshop. So we keep on hammering on our parents. So that is our motto. But still, this financial literacy will think and will definitely will speak to you. एक सिंपल बॉलपार्क है सुमन, कि अगर आपके हाथ में 100 रुपया आया तो 10%, 10 रुपया आप साइड को रख सकते हो क्या? Yes, yes, yes. ये So, बहुत जरूरी है करना। yes, आप yes. इसके लिए नहीं रुक सकते हो कि मेरे 50,000 आएगा तो ही मैं साइड को रखूंगा पैसा, हाँ, exactly. ऐसा नहीं है। जो इंसान 10 रुपया सेव कर सकता है ना 1,000 में या 100 रुपए में, वही जाकर जब 50,000 आता है वो सेव करेगा। हाँ, सचमुच ये ये सिर्फ बात अभी सिंपल थोड़ा. डिसिप्लिन और कॉन्सेप्ट है, और कुछ Yes, नहीं। yes, yes, yes. ये थोड़ा हैमर करना पड़ेगा उनपे कि आप नहीं ये ये ट्राई करो कीजिए। करो करो. Yes, yes, हाँ, yes. Definitely will try, ma'am. Thank you, ma'am. Hello. तो या पूनम, Chitra ma'am, hello. हेलो। Ma'am, I just want to ask that at what age the planning should start, ideally? That is my first question. जल्दी से जल्दी, कल के लिए रुकना मत। Okay. Whatever it may be, the age. Whatever it may be. And I just want to one more question, that which life insurance or which policy is good for the special need child to start with? स्पेशल नीड बच्चे के लिए लाइफ इंश्योरेंस लेना जरूरी नहीं है। लाइफ इंश्योरेंस कौन लेता है? जो पैसा कमाता है, जो घर पे पैसा कमाता है, नहीं, उसके हाँ, नाम मेरा से क्वेश्चन लाइफ थोड़ा गलत इंश्योरेंस हो गया. पॉलिसी लेना कौन है। सा पॉलिसी रहेगा जो उसको काम आएगा फ्यूचर में, ऐसा कौन सा लेना चाहिए? वही तो, जो आप लोग पेरेंट्स हैं, राइट,
तो अगर आप पैसा कमा रहे हैं या घर पे और कोई पैसा कमा रहा है, उन्होंने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेना है। या उनके लिए ही ओके, पूछ रही हूँ। हाँ, तो वो बहुत सारे पॉलिसीज अभी अवेलेबल हैं, LIC से लेके HDFC, बिरला, सब लोग हैं, सबके पॉलिसीज हैं। सिर्फ आप टर्म प्लान पूछिए, टर्म लाइफ पॉलिसी, ओके, ये वाला लेना है। और दूसरा है कि मेडिक्लेम प्लीज लेना। अभी हमारे बच्चों के लिए मेडिक्लेम अवेलेबल है, स्पेशल नीड्स बच्चों के लिए भी अवेलेबल है। तो निरामया के अलावा यस अभी यस, मेडिक्लेम के लिए बाकी सब जो बजाज है या टाटा है, अदर ये कंपनी। सारे कंपनीज के स्पेशल नीड्स प्लान्स, स्पेशल नीड्स के लिए मेडिक्लेम अवेलेबल है, ओके ये आप ले सकते हो। ओके, थैंक यू मैम। और कोई सवाल पूछना चाहता है? नहीं तो मैं एक एक सवाल पूछती हूँ, आप लोग प्लीज रेस्पॉन्स दीजिए। आप लोग में से कितने लोगों को विल बनाने के लिए हेल्प चाहिए? हेलो। आप टाइप कर सकते हैं। मैम मेरा एक सवाल था। एक मिनट, मैं थोड़ा ये सवाल खत्म कर लूं प्लीज। ठीक है चलेगा। हाँ, सब लोग पेरेंट्स प्लीज आप टाइप कर सकते हैं। आप लोग में से कितने लोगों को विल्स बनाना है? पेरेंट्स प्लीज चैट बॉक्स में थम्स अप तो डालिए। नहीं, टाइप कर रहे हैं, मी आप करके टाइप आ कर। रहा है, लेकिन आप लोग विल करके टाइप कीजिए तो हमको समझ में आएगा। WILL, विल करके टाइप कीजिए। हम्म। ओके, दूसरा सवाल है कि आप लोग में से कितनों को फाइनेंशियल प्लानिंग की जरूरत है और आप लोग एक 1-on-1 अपॉइंटमेंट चाहते हो। आपको वहां पर FP करके टाइप करना, फाइनेंस टाइप कीजिए या FP टाइप कीजिए या फाइनेंशियल प्लानिंग जो भी है टाइप करना। सॉरी एवरीबॉडी, मेरा इंटरनेट सडनली ड्रॉप ऑफ हो गया। सो चित्रा, आप यस मुझे, यार, कैन यू हियर मी? मुझे यस यार। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट थी कि आप एक एग्जाम्पल शेयर करते हो ना हमेशा, कि अगर आप जल्दी प्लान करना शुरू करोगे तो उसके क्या एडवांटेजेस होते हैं, कि व्हेन द चाइल्ड इज यंगर तो इंश्योरेंस में उसका क्या एडवांटेज होता है, एंड इवन लाइक इन्वेस्टमेंट वाइज उसका क्या एडवांटेज होता है। आप सिंपली एक बार वो एक्सप्लेन कर देंगे? या, 1 सेकेंड। तो आपको मैं एक क्विकली केस स्टडी दिखाती हूँ, जैसे श्रेया ने बोला कि ये एक कपल के बारे में है कि इनका उम्र है, जैसे आपको दिखाई दे रहा है श्रेया, विजिबल राइट? यस। या, तो ये खन्ना फैमिली है,
और उनका एज है 52 एंड 48। हस्बैंड का 52, वाइफ का 48। और वो रिटायर होना चाहते हैं 60 साल की उम्र पे। और उन्होंने बोला है कि उनकी बेटी है जो 10 साल की है, और उनको ऐसा लग रहा है कि उसके 18 साल पर उनको रानी के लिए मंथली पैसा निकालना है। आज का उनका डेली खर्चा वो ऐसा बता रहे हैं कि नीचे अगर आप देखें यहाँ पर कि उनके डेली लिविंग एक्सपेंसेस 25,000 हैं, तो एनुअली वो 3 लाख स्पेंड कर रहे हैं। और जो पेरेंट्स हैं उनका खर्चा मंथली 1,25,000 है, एनुअली 15 लाख खर्चा कर रहे हैं। उनके ट्रैवल के हिसाब से, बच्चे के ट्रैवल के हिसाब से, बच्ची के लिए, रानी के लिए वो 1,000 स्पेंड कर रहे हैं मंथली। मेडिकल में 1,000 जा रहा है, और थेरेपीज में मंथली 3,000। तो सिर्फ रानी का खर्चा जो है मंथली 30,000 है, उसका एन्युअली नीड हो जाता है 3,60,000। और जो पेरेंट्स का मंथली खर्चा है वो 1,25,000 है, जो सालाना 15 लाख हो जाता है। ओके। अभी ये देखते हैं कि पेरेंट्स क्या कमाते हैं। तो उनका मंथली जो इनकम है टैक्स भरने के बाद हाथ में 1,50,000 ये कमा रहे हैं। ओके। और उनका एक रेंटल इनकम है, एक घर उन्होंने रेंट पे रखा है जहां से 20,000 रुपये आता है। तो टोटल उनका मंथली 1,70,000 वो कमा रहे हैं। करेक्ट। एंड सो देयरफॉर एनुअल इनकम उनका 20 लाख है, 20,40,000। इसके सामने उनके जो एक्सपेंसेस जो हमने देखे वो थे कि लिविंग एक्सपेंसेस 15 लाख, और उनके लोन के ईएमआई जा रहे हैं मंथली 20,000 जा रहा है। इंश्योरेंस प्रीमियम जो है वो 5,000 जा रहा है। सेविंग्स वो लगभग 5,000 कोशिश कर रहे हैं मंथली करने का। और वेकेशंस पे उनका 75,000 उन्होंने प्लान किया है कि उनको साल में इतना खर्चा करना है, ऐसा उन्होंने पैसा डाला है। और स्कूल के जो खर्चे हैं वो है 24,000। ये देख के उनका जो टोटल खर्चा है ना 1,70,000 तो आ ही रहा है, बट एक्चुअली वो नेगेटिव में जा रहा है। अगर आप देख रहे हैं तो वो उनको उतना पैसा बच नहीं रहा है। करेक्ट। करेंटली उन्होंने कहाँ पैसा रखा है? सेविंग्स अकाउंट में 1,20,000 है, बैंक एफडी में उनके 30 लाख रुपए रखे हैं, जो 5% कमा रहा है। आपको याद है मैंने बोला इन्फ्लेशन के हिसाब से एटलीस्ट 6% टैक्स भरने के बाद आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल नहीं आ रहा है। फिर ये टोटल उनका 31,20,000 है। उसके बाद कुछ कॉर्पोरेट एफडी में उन्होंने पैसा रखा है, जहाँ पे वो कुछ 7, 7.5, 7.75% कमा रहे हैं। फिर पीपीएफ उनका पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, जहां पर 7% कमा रहे हैं, 40 लाख रुपया है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जो जहां पर कंपनी में काम कर रहे हैं वहां पे उनका एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है, जहां पर 10 लाख उन्होंने इकट्ठा किया है, जो 8% कमा रहा है। ये टोटल उनका पैसा 55 लाख है। उसके अलावा उन्होंने जो ये महंगी वाली इंश्योरेंसेस है यूलिप्स, उसमें 10 लाख रखा है, जहां से वो 9% कमा रहे हैं। कोई इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में उन्होंने पैसा रखा है, जहां पर वो 12% कमा रहे हैं। जो आपको दिख रहा है ये है टैक्स भरने के बाद वो कितना कमा रहे हैं। तो टैक्स भरने के बाद वो 10% कमा रहे हैं, 10%। और इस तरह से उनका टोटल अगर आप देखने गए तो 31,20,000 प्लस 55 लाख प्लस 20 लाख, लगभग 1 करोड़ उनके पास हाथ में पैसा है। करेक्ट। और इसका जो एक्सपेक्टेड इंटरेस्ट जो है या रेट ऑफ रिटर्न जो है जो वो कमा रहे हैं टैक्स के पहले, हाथ में उनको 4.96, जो हाथ में कैश यानी ये सब जो है, जो बैंक में पैसा है और बैंक एफडी है, उसके साथ ही साथ वो हार्डली 5% भी नहीं कमा रहे। फिर ये जो इन्होंने बॉन्ड एफडी, कॉर्पोरेट एफडी में रखा है, पीपीएफ और ईपीएफ, वो सब मिलाकर लगभग 9% तक वो कमा रहे हैं। और म्यूचुअल फंड जो है, इक्विटी फंड और यूलिप जो है, उसमें लगभग 13% तक कमा रहे हैं प्री टैक्स। तो उनका टोटल जो एवरेज रिटर्न है ना वो सिर्फ 8.87% है आज के हिसाब से। तो अभी सब हम लिखते हैं कि उनको किस चीज के लिए पैसा चाहिए। करेक्ट। तो जैसे पेरेंट्स की गोल्स के बारे में हमने बात किया,
तो ये है गोल्स जो उन्होंने बताया कि हमको मंथली जो इनकम नीड है वो 30,000 है, रानी के लिए हमको लगेगा आज के हिसाब से। इसका नीड फ्यूचर में, यानी आज 10, जब रानी 10 साल की है तो हमको 30,000 रुपया लगने वाला है रानी के लिए, जो फ्यूचर में उसका नीड हो जाएगा 47,000, लगभग 48,000। उसके लिए जो कॉर्पस लगेगा, फॉर एज लॉन्ग एज रानी इज अलाइव, वी विल नीड 1,56,000, 1,56,000 एट द कॉर्पस फॉर रानी। इसके लिए जो मंथली सेविंग आज पेरेंट्स ने करने हैं वो है 1,24,000। वो बहुत ज्यादा लगता है ऑब्वियसली जब भी हम देखते हैं, लेकिन आज उनकी जो सेविंग्स है उसके हिसाब से हमको लग रहा है कि ये जो फिगर है 1,24,000 और या 94,000 जो लमसम में है, जब हमने प्रीवियस स्लाइड देखा तो हमने देखा कि उनके पास पैसा है, इतना 1 करोड़ तो उनके पास पैसा है। इसके साथ रानी का जो मंथली इनकम नीड है उसके लिए आप ये टिक देख सकते हो, ये पेरेंट्स अचीव कर पाएंगे। लेकिन इसके बाद जो रानी के लिए अगर हमने किसी को अपॉइंट करना है एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट के लिए, उसके लिए पैसा नहीं है। उसके हेल्थ कॉर्पस के लिए भी पैसा नहीं है। उनके खुद के मंथली इनकम नीड जो 1,25,000 है उसके लिए भी पैसा नहीं है। उनके खुद के मदर और फादर के फ्यूचर हेल्थ कॉर्पस के लिए जो 20 लाख रुपया चाहिए उसके लिए भी पैसा नहीं है। क्योंकि आपने देखा कि ये जो टोटल रिक्वायरमेंट है, करेक्ट, सिर्फ रानी के लिए 2 करोड़ का रिक्वायरमेंट है और उनके पेरेंट्स के लिए 5 करोड़ का है। टोटल 7,33 है, लेकिन इसके सामने उनके पास सिर्फ लगभग 1 करोड़ का पैसा है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जो अभी का जो इन्वेस्टमेंट्स उन्होंने किया है ना, वो हार्डली 6.46% टोटली कमा रहा है। अगर इसी पैसे को उन्होंने ढंग से इन्वेस्ट किया, अगर उनको ये सिखाया जाए कि ये पैसे को किस तरह से इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि वो एटलीस्ट 10% कमाएगा, तो आप ये देख सकते हैं कि रानी का जो सब नीड्स है सारे टिक हो गए। पेरेंट्स का बच गया, उनको और कुछ करना पड़ेगा, शायद उनको घर बेचना पड़ेगा। वो जो दूसरा घर है जो रेंट पे लगा है वो अगर उन्होंने बेच के इन्वेस्ट कर दिया तो उनके भी नीड्स सॉर्ट आउट हो जाएंगे। तो एक्चुअली लोग यहीं पे फंस जाते हैं कि मेरा पैसा कहाँ है और वो कितना कमा रहा है, ये लोग देखते ही नहीं है। ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका जो आपने इतने मेहनत से पैसा कमाया है वो हर एक रुपया आपके लिए काम कर रहा है क्या, वो ठीक से पैसा कमा रहा है क्या, ये देखना एकदम इम्पोर्टेंट है आपके लिए। जो हम बता रहे हैं कि आप कर सकते हैं और इसके लिए हम आपकी सहायता कर सकते हैं ताकि आपको समझे कि कितना पैसा कहाँ रखना चाहिए। अभी जैसे श्रेया ने बताया, अगर हम 8 साल के लिए हर फैमिली का जो ये जो नीड है ये पूरा हम कर दें कि किस तरह से ये जो नीड है इसके लिए हम कहाँ कहाँ पैसा लगाएं, ये अगर हम कर पाए तो ये पूरा एड्रेस हो जाएगा। इसके बाद आता है लाइफ इंश्योरेंस का नीड जो अलग से करना पड़ता है। तो इसके बेसिस पर अगर आप कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहेंगे तो प्लीज बताइए। एक तो ना प्लीज घबराना मत, सब करोड़ करोड़ फिगर देख के ना सब लोग डर जाते हैं। हम लोग ने जब भी देखा था पहले बार कोरोना ऑटिज्म में, मुझे और मेरे हस्बैंड को भी ये दिखाया गया था कि 7 करोड़ लगेगा, तभी तो हम लोग लिटरली चेयर से ही गिर गए थे कि ये कैसे कर पाएंगे करके। लेकिन हमने थोड़ा 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 करके स्टार्ट किया और जैसे जैसे हमारे करियर प्रोग्रेस होते रहे हम एकदम डिसिप्लिन तरीके से पैसा बचा बचा के हमने ये इन्वेस्ट किया है और हमने ये ध्यान दिया है कि पैसा ज्यादा कमाएगा। ये ठीक से करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई आपको आपका पैसा लेके भाग नहीं जाना चाहिए। आपको आप जब भी इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप सही तरीके से कर रहे हो, आप बहुत ग्रीडी लालची नहीं हो जाते हो कि मुझे बहुत ज्यादा रिटर्न चाहिए। जब आप बहुत ज्यादा रिटर्न सोचते हो ना तो उसमें रिस्क भी बहुत ज्यादा रहता है और उसमें पैसे का लॉस होने का भी चांस हो जाता है।
लेकिन यही हम सिखाते हैं पेरेंट्स के लिए, और ये फ्रीली आपके लिए अवेलेबल है, आप सबके लिए ये अवेलेबल है। प्लीज आप अ, बोल सकते हैं कि मुझे ये सेशन फाइनेंशियल प्लानिंग का करना है, और हम आपके लिए ये ऐसा वन ऑन वन, आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए ऐसा जूम सेशन अरेंज करते हैं और आपको समझाते हैं कि आपको क्या करना है। मैं सिर्फ आपको रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि प्लीज आप इसका फायदा लीजिए और समझ के लीजिए कि आपको आपके फैमिली के लिए क्या जरूरत है। मैं तो दो के श्रेया। Yes, perfect. और एक बार ये हो गया ना, तो फिर पैरेलली आपको ये भी सोचना है कि ये सब मेरे बच्चे के लिए कैसा अवेलेबल है। तो वो पैरेलली विल बनाना, जैसे मैंने श्रेया के साथ हमारा विल, हमारा ट्रस्ट सब बनाया है, और पैरेलली लेटर ऑफ इंटेंट हम बनाते जाते हैं कि जैसे जैसे लाइक मेरे मेरे बेटे को ना फुल स्लीव शर्ट और कॉलर वाला शर्ट पहनना बिल्कुल पसंद ही नहीं है, उसको गुस्सा आता है। लेकिन मेरा वो फर्ज बनता है कि मैं कहीं लिख के रखूँ ना, कि मेरे जाने के बाद मेरे बेटे को कभी ये ऐसा वाला शर्ट मत पहनाना, उसको राउंड स्लीव्स, राउंड नेक, हाफ स्लीव टी शर्ट ही पहनना चाहिए, नहीं तो उसको गुस्सा आता है। ये दूसरे को कैसा समझेगा? एज अ पेरेंट हमको ये लिखना है, और इसको, ये है लेटर ऑफ इंटेंट, जहाँ पर आपको एक डॉक्यूमेंट बनाना है अपने बच्चे के बारे में कि हमारे लाइफ, वो बच्चा किसके साथ खुश है, उसको कहाँ, किसके साथ वो खुश नहीं है, उसको कहाँ जाने के लिए पसंद है, कहाँ नहीं जाना पसंद है, उसको कहाँ क्या खाने का पसंद है, क्या पीने का पसंद है, कहाँ रहने का पसंद है, उसको साल में कहाँ वेकेशन पर आप लेके जाते हो, उसको रोज का उसका शेड्यूल क्या है, उसके टीचर्स कौन है, उसके डॉक्टर कौन है, उसको कितने बार आप डॉक्टर के पास लेके जाते हो साल में, अगर आपको कुछ हो गया तो पहले किसको फोन करना चाहिए, और उसने उस दिन उस आपके बच्चे के लिए क्या करना चाहिए। ये सब बेसिक जो है, एक दो पेज प्लीज आप लिख के रखिए कहीं तो। और जो जो आपके करीबी फैमिली मेंबर हैं या फिर आपके करीबी दोस्त हैं जो आपको समझते हैं, उनके पास प्लीज कॉपीज दे के बांट के रखिए कि देख मेरे को कुछ हो गया ना, तो प्लीज मुझे इस तरह से हेल्प करना। और हेल्प के बारे में पूछने से इतराना मत, लोग हेल्प करते हैं, संकोच मत करना। और चित्रा, मैं इसमें सिर्फ एक बात ऐड करना चाहूंगी कि मुझे ऐसा लगता है दैट अगर हम अकेले इन सब चीजों के बारे में सोचते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, हमें यही नहीं मालूम होता कि हमें क्वेश्चंस क्या पूछने चाहिए। बट व्हेन वी वर्क विद समवन लाइक यू, आप हमें गाइड कर सकते हो दैट एटलीस्ट क्वेश्चंस क्या क्या पूछने चाहिए। तो उससे इंफॉर्मेशन धीरे धीरे कर कर समेटना ज्यादा आसान हो जाता है। हम आइसोलेशन में जब सोचते रहते हैं कि अरे कैसे होगा, दैट इट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम, इट फील्स वेरी वेरी इंटिमिडेटिंग, तो उससे हम डर जाते हैं। बट जैसे ही हमारे लिए कोई बारीकी से उसे ब्रेक डाउन कर देता है, तो स्टेप बाय स्टेप उसे लेना ज्यादा आसान हो जाता है। सिमिलरली मैं विल और ट्रस्ट के लिए भी हमेशा यही कहती हूँ कि आप हमें आपसे बस सिंपल आपके परिवार के बारे में सवाल पूछने दीजिए, आप हमें उसका जवाब बना देते जाइए, और हम आपके लिए डॉक्यूमेंट बनाएंगे। आपको उसकी हर एस्पेक्ट को आज समझने की जरूरत नहीं है, आपको इसकी जरूरत है सिर्फ ये समझने की जरूरत। वेरी वेल सेड श्रेया। और यू नो हम लोग ने इतने फैमिलीज के साथ हम बात कर चुके हैं कि लोगों को किस अलग अलग तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं। जब जब आप ये बनाने का शुरू करते हैं ना, तभी आपको समझेगा कि मैं, मेरी सोच कहाँ कहाँ जाती है कर। जब तक आप शुरू नहीं करते हो ना, तब तक आपको ये समझ में ही नहीं आएगा कि मैं कहाँ कहाँ अटक रही हूँ। होप आपके लिए ये सेशन हेल्पफुल रहा। अम, आप लोगों को और कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप जरूर पूछ सकते हैं। चैट में हमने अपना हमारा फोन नंबर भी डाला है, आप प्लीज ये लिख लीजिए। और ईमेल आईडी भी लिखा है। आप मेरे लिए या श्रेया के लिए, हमारे टीम के लिए कुछ भी आपके पास
क्वेश्चंस हैं तो आप फोन करके पूछ सकते हैं या ईमेल भी कर सकते हैं. या रमणी? Yes, ma'am. Yes, Yeah. ma'am. Shall we end up with this, No, ma'am? I think we are done, no? Yes. Yeah, that's what I was asking. Yes, ma'am. Ma'am, thank you so much for श्रेया your का भी ईमेल आईडी आ गया है. yeah, ma'am. Ma'am, Shreya ma'am and Chitra ma'am, thank you so much for your experience, personal experience sharing, and financial ideas. Even it's for me too late, I think so, because I have a Nothing is special. late, huh? It is Yeah, never yeah, too late. It's yeah, never yeah, late. yeah. किसी ने Okay. पूछा ना कि हाँ कभी शुरू करना चाहिए. Someone हाँ asked the हाँ question. yeah So I yeah was yeah telling it is never late. Just start. Don't yeah postpone for tomorrow. Just start it off. Then थोड़ा yes थोड़ा करके ना you will be able to do the next steps. yeah But yeah don't yeah postpone it. postpone it. Yes, yes, ma'am. Financial And freedom is we have also put the Facebook special needs community yeah link. yeah ma'am. That Yes, also, yes, people can click on and join, and because get we the keep knowledge. posting all our sessions as and when it happens. We keep sharing some documents and ideas Yeah. about how to go about doing it. Yes, yes, ma'am. Yes, ma'am. And there is also a podcast where I have interviewed Shreya. That also Okay, we ma'am. can share with you about the legal aspects and the Yes, ma'am. finance aspects. Ka bhi there are links. You Yeah, can ma'am. share that also. If you all have an internal WhatsApp group, na, Yes, you ma'am. can share this with everyone. Yeah, yeah, ma'am. We have WhatsApp groups, SOPAN WhatsApp groups we have. We So will I will share request everything. Shilpa, my colleague, Yeah. to share Yes, everything with you. yes, ma'am. So Shilpa can share all of these things with you, and you can share it on Yeah, the ma'am. WhatsApp group. We just Thank you for the maybe request for a feedback form from everyone later, and yeah, yeah. anything that people want to know, please request them to ask. Okay. Yes, ma'am. Yeah. Confirm. Thank you, Thank ma'am. you for the This has been Most very welcome, informative. Rashmi. Thank you, Thank you. Rashmi. Yeah. and thank you for the logic, strategies, plans, and common mistakes what we do. Everything we learned from your speech. Thank you so much, ma'am. Freedom of finance is available only when we learn it. So we learned 45% at least, I think so. You are an open book. So anytime we can approach you. So thank you so Please, much please for do. giving us knowledge, Yeah. ma'am. Thank you, ma'am. Most Thank you welcome. so much.